बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप। शहर की भयावह ट्रैफिक समस्या के खिलाफ आज कांग्रेस और उसके विभिन्न संगठनों, छात्र परिषद, महिला कांग्रेस, सेवा दल ने गिरजा मोड़ पर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रशुनजीत पोयतंडी ने सीधा आरोप लगाया कि सत्ताधारी दल टीएमसी के नेता फुटपाथ दुकानदारों से अवैध वसूली करते हैं, जिससे अतिक्रमण और जाम बढ़ता है। कांग्रेस ने प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि वे उन्हीं नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं जो इस समस्या की जड़ है, जिससे समाधान निकलना नामुमकिन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है, जिसके कारण युवा टोटो ऑटो पर निर्भर है। उन्होंने मांग की कि टोटो चालकों के लिए विशेष रूट निर्धारित किए जाएं ताकि उनका रोजगार भी बना रहे और शहर जाम मुक्त हो। नेताओं ने स्पष्ट किया कि आज उच्च माध्यमिक एचएस की परीक्षा नहीं थी, इसलिए प्रशासन को जगाने के लिए सड़क जाम का रास्ता चुना गया। ক্ষমতা হলো না আজ পর্যন্ত ভলভো স্ট্যান্ডকে সরাবার। কোন অধিকারে ভলভো স্ট্যান্ড ওখানে চলছে আমরা জানি না। দিনের বেলায় র্যাক লোডিং হয়ে বেরোচ্ছে, বাচ্চারা দুর্ঘটনা কবলে পড়ছে, ঘুমোচ্ছে। আপনি দেখেছেন, আমরা লড়াই করেছি। হটন রোড জামমুক্ত বলেছিলাম, টোটো অটো নির্দিষ্ট পার্কিং দিন, তারা পার্কিং থেকে বেরোবে, এক এক করে যাবে, করলো না। আসানসোলে কিছুদিন আগে একটা ঝামেলা হয়েছিল, মাস দেড়েক আগে, তারপরে 5-6 দিনের জন্য পরিষ্কার হয়েছিল। আসানসোলের বিধায়ক তথা মন্ত্রী উনি ভাষণ দিয়ে এই বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বললেন বেকারদেরকে রোজগার দেওয়ার ক্ষমতা নেই, রোজগার আমরাও রোজগার ছিনতে চাই না। আর আপনি কত রোজগার দেন আর আপনার ভাইদের পকেটে কত ঢোকান সেই হিসাব আসানসোলের মানুষ জানে। আপনারা 15 বছরে ব্যর্থ রোজগার দেননি, তাই আপনার দিদিকে বেকারদেরকে 1500 টাকা ভাতা দিয়ে মুখ বন্ধ করাতে হচ্ছে। এই টোটো অটো যারা চালায় তারা আমার ভাই, তারা আমাদের শহরের ছেলে, তাদেরকে কেন কোনো কারখানাতে কোনো অফিসে রোজগার দেননি? অনেক শিক্ষিত ছেলে আছে। কারণ আপনারা স্বজন পোষণ আর লুট, যেখান থেকে টাকা পেয়েছেন সেখান থেকে আপনারা তাদেরকে দেখেছেন। আমরা তার বিরুদ্ধে আজকে পথে নামলাম। আসানসোলের আইসি সাহেব এসেছিলেন, ট্রাফিক ওসি এসেছিলেন, ওনারা সময় চাইলেন। যদি 15 দিনের মধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা আজকে নেই, তাই রাস্তায় বসেছি। সমস্যার সমাধান না হলে এখানে মঞ্চ বেঁধে হটন রোডে বসবো, কারো ক্ষমতা থাকলে উঠিয়ে নেবে আমাদেরকে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য,
ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। अवैध कोयला खनन मामले में ईडी ने 100.44 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में 100.44 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। ये कार्रवाई ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के क्षेत्रों में हुए अवैध खनन से जुड़े मामले में की गई है। जांच में सामने आया है कि अनूप माझी उर्फ लाला के नेतृत्व में एक सिंडिकेट अवैध कोयले की खुदाई और तस्करी करता था। इसके लिए फर्जी चालान और व्हाट्सएप के जरिए अधिकारियों को सूचना देकर ट्रकों को सुरक्षित निकाला जाता था। ईडी के अनुसार इस गिरोह ने करीब 2,742 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की। जांच में हवाला नेटवर्क और नकद लेन देन के भी सबूत मिले हैं। जब्त की गई संपत्तियां शकंभरी इस्पात एंड पावर लिमिटेड और गगन फेरोटेक लिमिटेड के नाम पर है। अब तक इस मामले में कुल 322.71 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इससे पहले ईडी ने कोलकाता और दिल्ली में छापेमारी भी की थी। ईडी ने कहा है कि अवैध खनन और धन शोधन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पांडेश्वर में पुलवामा शहीद दिवस के मौके पर पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी अपने समर्थकों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि देने शहीद वेदी पहुंचे, जहां ताला लगा हुआ मिला। उन्होंने कहा कि ये शहीद वेदी 2020 में पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में बनाई गई थी। ताला लगे होने पर उन्होंने वर्तमान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए देश विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया। जितेंद्र तिवारी ने कहा कि शहीद वेदी उनके वेतन और लोगों के सहयोग से बनी थी, लेकिन आज उस पर ताला लगना शहीदों के अपमान के समान है। उन्होंने दावा किया कि जनता सब देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को जो शिक्षा दिया था, उसके खिलाफ भी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती जी ने हमारे देश के सैनिकों का ही अपमान किया था और कहा था कि ये सेटिंग का खेला है। ये नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती हमेशा से देश विरोधी है और हमेशा से हमारे सैनिकों का अपमान करता है। और ये आज थोड़ा जो रंग किया गया है, उसका जो इमेज खराब हो गया है, लोग जो उसको देशद्रोही है ये समझ गए हैं। इससे अपने आप को बचाने के लिए ये रंग वगैरह किया गया है। लेकिन मैंने जिस स्मारक को बनवाया यहाँ के लोगों के सहयोग से, किसी ने ईंटा दिया, किसी ने गिट्टी दिया, किसी ने बालू दिया, और मेरा एमएलए का जो सैलरी था उस सैलरी के पैसे से बाकी खर्च हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया था। आज उसी स्मारक में हम लोग क्या करने आए थे? हम लोग केवल श्रद्धा सुमन, अपने देश के सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए थे। इसे रोकने के लिए ये ताला लगा दिया। ये पांडेसर की जनता को निर्णय लेना है कि ऐसे व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। কি অপরাধ আমার, কি অপরাধ? পাণ্ডবেশ্বরের জনগণ চেয়েছিল যে পুলওয়ামার যে আমাদের বীর শহীদ তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য যেন একটা পার্ক করা হয়, শহীদ পার্ক। 2020 সালে আমি তৈরি করে দিয়েছিলাম। এটা বিধায়কের কোটার ছিল না, আমার বিধায়কের যে স্যালারি, সে স্যালারির পয়সা এবং কিছু লোকের সাহায্য নিয়ে এটা করেছিলাম। আজ এটাকে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী রং টং করেছেন, ভালো জিনিস তো। রং করেছেন বলে পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ এখানে মালা দিতে পারবে না। আজকেই তো পুলওয়ামা শহীদ দিবস, তো আজকে দেখুন, আজকে বড় দেখুন কতবার তালা লাগিয়ে দিয়েছে, যাতে আমরা কেউ মানে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুধু এখানে মালা দেবেন, আমরা যাতে কেউ মালা না দিতে পারি। এর জবাব পাণ্ডবেশ্বরের মানুষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে আগামী দিনে দেবে। আমরা কোনো এখানে অশান্তি করব না। আমরা ফুল লায়ে হবে, ফুল এনেছো তো। আমরা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই অত্যাচারের কারণে
আমরা पुलवामा भारतीय भवन कमेटी की ओर से आज सर बीरेन मुखर्जी का जन्मदिन मनाया गया। यहाँ मंत्री मलाई घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने और सेल आईएसपी के अन्य अधिकारियों ने मिलकर सर बीरेन मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहाँ मलाई घटक ने कहा कि आज सर बीरेन मुखर्जी के जन्मदिन पर उपस्थित होकर वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर बीरेन मुखर्जी यहाँ उद्योगीकरण के अगुआ थे। उन्होंने पहले यहाँ इस्पात कारखाना बनाया था और उनके प्रयास से कुल्टी के बाद बनपुर में इस्पात कारखाना बनाया गया। দেখুন, আমি ধন্যবাদ জানাই ভারতী ভবনের যে কমিটি, সেই কমিটিকে, যে স্যার বীরেন মুখার্জি আজকে তারা জন্মদিন উপলক্ষে এখানে অনুষ্ঠান আয়োজন করেছেন। স্যার বীরেন মুখার্জি আজকে যে এখানে হাজার হাজার মানুষ, হাজার হাজার পরিবারের অন্নসংস্থান হচ্ছে, এত উন্নতি হয়েছে এই অঞ্চলের, তার কিন্তু সূত্রপাত হচ্ছেন স্যার বীরেন মুখার্জি। তিনি বেঙ্গল আয়রন স্টিল নামে ভারতবর্ষে প্রথম ইস্পাত তৈরি করেছিলেন কুলটিতে, এবং পরবর্তীকালে বার্নপুরে, এবং সেই কারখানাই আজকে ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিল হিসাবে খ্যাত। এই ইন্ডিয়ান আয়রন স্টিলে মডার্নাইজেশন হচ্ছে। আগামী দিনে আরও অনেক মানুষ এখানে চাকরি পাবে, এই অঞ্চলের আরও অনেক উন্নতি হবে। এর কিন্তু মূল সূত্র হচ্ছে কিন্তু স্যার বীরেন মুখার্জি, যিনি আমাদের এই শহরটাকে গড়ে তুলেছিলেন, এই শিল্পাঞ্চলটাকে গড়ে তুলেছেন। তাই তার যে জন্মদিন, সেই জন্মদিনে আমি থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত এবং আনন্দিত মনে করছি। নমস্কার। दुर्गापुर में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कला खुलकर सामने आ गई है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिजीत भट्टाचार्य ने सोशल मीडिया पर दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लक्ष्मण घुरई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिजीत भट्टाचार्य ने चेतावनी दी है कि यदि 2026 के चुनाव में लक्ष्मण घुरई को टिकट दिया गया तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। हालांकि विधायक लक्ष्मण घुरई ने इस मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं जिला नेतृत्व के एक वर्ग का कहना है कि इन आरोपों के पीछे अन्य राजनीतिक कारण हो सकते हैं। इस विवाद पर तृणमूल कांग्रेस ने भी तंज कसा है। तृणमूल का कहना है कि भाजपा की गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। फिलहाल ये विवाद क्षेत्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और चुनाव से पहले भाजपा के लिए नई चुनौती खड़ी कर रहा है। আমি আজকে দুটো ফেসবুক পোস্ট করেছি। প্রথমটা বলি যে আমার ভারতীয় জনতা পার্টি, তার স্লোগান হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবাংলা দুর্নীতিমুক্ত আমরা পশ্চিমবঙ্গ গঠন করব। সেখানে দাঁড়িয়ে এই দুর্গাপুরে আমি মনে করি, বা আমার মতন অনেকেই মনে করছেন এখন, যে এই দুর্গাপুরের যিনি পশ্চিমের যিনি বিধায়ক আছেন বিজেপি, তিনি হচ্ছেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত টোটালটাই দুর্নীতিতে দূষিত। উনি যদি আবার মনোনীত হন তাহলে ওনার বিরুদ্ধে আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব এবং আমি জিতব, তৃণমূলকে তৃতীয় স্থানে নিয়ে যাব। এটা হচ্ছে আমার প্রথম। দ্বিতীয় পোস্ট, এবার আমি বলেছি যে উনি সম্পূর্ণরূপে আইপ্যাকের সঙ্গে একদম ঠিক। কারণ হচ্ছে এর প্রমাণও আছে, আপনারা বিশ্লেষণ করলে জানতে পারবেন যে যখনই আমার কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের নেতৃত্ব দুর্গাপুরে এসছেন, ফুল নিয়ে অনেক কয়লা মাফিয়া, লোহা মাফিয়াকে তাদের সঙ্গে ছবি তোলাতে নিয়ে গেছেন এই ব্যক্তি, এই বিধায়ক। কী লাভ? কার নির্দেশে উনি এটা করেছেন? এটা তো দলের ক্ষতি হয়েছে। উনি হয়তো পয়সা পেয়েছেন, উনি হয়তো দলের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছেন আইপ্যাকের নির্দেশে।
এই রকম দুর্নীতিগ্রস্ত মাথা চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত একটা মানুষ আই প্যাকের চোরাবালিতে তৃণমূলের কোলে উঠে যে বসে আছে, এই রকম দুর্নীতিগ্রস্ত লোককে পরাস্ত করব, ন্যায় নীতিকে প্রতিষ্ঠা করব। আমি ভারতীয় জনতা পার্টি করি, ভারতীয় জনতা পার্টি আমাকে শিখিয়েছে। দেখুন, এটা নিয়ে তো আর কিছু বলার থাকে না, কারণ উনি হয়তো জানেন, যিনি বলছেন তিনি তো দলেরই লোক, বিজেপি দলের লোক, তিনি তো কিছু খোঁজখবর পেয়েছেন। তো আমি এটাকে বলবো, এটা সম্পূর্ণ তাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। লক্ষণ ঘুরিয়ে দাঁড়াবেন না কে দাঁড়াবেন সেটা বিজেপি ঠিক করবে। সুতরাং সেখানে আমরা কিছু যায় আসে না আমাদের। আমরা এটা বলতে পারি যে যিনি দাঁড়াবেন তিনি কিন্তু অনেক ভোটে করে হারবেন, এটাতে আমরা নিশ্চিত। তো লক্ষণবাবুর বিরুদ্ধে অনেক লোক আছে, আবার কেউ বলে লক্ষণবাবুকে চাই, এসব কোথাও দলের ব্যাপার, এটা নিয়ে আমাদের মাথা খারাপ করে लाभ नहीं। आसनसोल के लोको टैंक के पास जीटी रोड किनारे बने पार्क और नर्सरी को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। विस्थापित दुकानदारों ने राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन कर वैकल्पिक दुकानों की मांग की। दुकानदारों का कहना है कि करीब 3 साल पहले हटाए जाने के बाद भी उन्हें अब तक कोई दूसरी जगह नहीं मिली। नेताओं ने आरोप लगाया कि पार्क का संचालन बिना लिखित आदेश के एक व्यक्ति को सौंपा गया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से न्याय की मांग की। दुकानदारों ने कहा कि उनकी बदहाल स्थिति के लिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिम्मेदार है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मोहब्बत से बोला कि तुम लोग हट जाओ, ठीक है, प्यार मोहब्बत से बोला कि तुम लोग हट जाओ, अब थोड़ा थोड़ा पैसा रेडी तुम लोग कर लो, हम दुकान बना के तुम लोग को साइड भी दे देंगे। एक साइड में पार्क हो जाएगा, अब बगल में दुकान तुम लोग को बना के दे देंगे। हाँ, प्यार मोहब्बत से हम लोग को हटा देगा। उसके बाद देख रहे कि ये लोग फूल का गाछ रखे हुआ, कोई पार्क वरक नहीं है, कोई पार्क नहीं है। पार्क बोल के ही तोड़ गया है कि यहाँ पर बस भी लगेगा, अब बच्चा लोग खेलेगा, अब बगल में तुम लोग को दुकान बना के दे देंगे। आज ना यहाँ बच्चा खेलता है ना वहाँ पर बस लगता ना बच्चा खेलता है, खाली दुनिया का फूल लगा दिया है, आदमी बेच रहा है। एक ही आदमी बेच रहा है, एक ही आदमी बेच रहा है, वो सब मिला हुआ है, सरकार वो किसी को दे दिया है। तो ऐसे में क्या देख रहे हैं कि एक चेहरा दिखा के सभी को बात हाँ, बार बार बुलाता है, कुछ होता नहीं है। तो वही जाने, वही लोग जाने क्या है, पसंद नहीं आया। पैसा है, हाँ पैसा है। आपका नाम? मेरा समीम। आसनसोल क्लब में आज रोटरी क्लब ऑफ आसनसोल ग्रेटर की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष सचिन रॉय ने बताया कि 20, 21 और 22 मार्च को पार्वती हॉल में निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर सक्षम का आयोजन किया जाएगा। इसमें ज़रूरतमंद लोगों को फ्री हाथ और पैर लगाए जाएंगे। ये शिविर महावीर सेवा सदन कोलकाता के सहयोग से लगाया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में जांच के बाद कृत्रिम अंग दिए जाएंगे। साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी होगी। इस कार्यक्रम में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी और डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक, मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। नगर निगम अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में सचिन रॉय ने सभी से अपील की कि जरूरतमंद दिव्यांगों को इस शिविर की जानकारी दे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ दिलाएं। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक प्रतिष्ठान श्रीमा ग्रुप की वार्षिक क्रिकेट प्रतियोगिता आसनसोल स्टेडियम में रविवार को आयोजित की गई। फाइनल में मनोहर बहाल पॉलीपैक पचगछिया और हरिओम पॉलीपैक जमुड़िया के बीच टक्कर हुई, जिसमें मनोहर बहाल विजय गई। पहले बल्लेबाजी करते हुए हरिओम पीपी ने निर्धारित 10 ओवर में 113 रन बनाए। मनोहर बहाल पीपी ने लक्ष्य को प्राप्त किया। पुरस्कार वितरण में मेयर परिषद सदस्य गुरदास चैटर्जी, विजय शर्मा, पिंटू शर्मा, नितेश शर्मा, इंद्रपाल सिंह अरोड़ा, राकेश शर्मा, अविनाश शर्मा, रवि शर्मा आदि उपस्थित थे।
संचालन SM मोनू ने किया। इस दौरान अंपायर विनोद माझी का अंदाज दर्शकों को काफी लुभा रहा था। आसनसोल सब डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन देवेंदो दत्ता की सक्रिय भूमिका रही। পলিব্যাগের আজকে খেলা ছিল, যাতে বানার থেকে শ্রীমা গ্রুপের খেলা প্রত্যেকবার ওরা করায়। আজকে হরিয়াম রানার্স হয়েছে আর উইনার্স হয়েছে শ্রীমা পলি। তো প্রত্যেকবার আমরা আসি, এখানে প্রাইজ দিতে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। খেলা খুব রোমাঞ্চক হয়েছে, দিলচাস্প একদম, আর খেলোয়াড়ি মনোভাব ছিল। সুন্দরভাবে পোলো গ্রাউন্ডে আজ সমাপ্ত হলো। ধন্যবাদ। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।